میں ہوں حسن رؤف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بھی مذہبی جوش و خروش اور خوشیوں کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گھروں میں خصوصی دعوتوں اور لذیذ پکوانوں کا اہتمام جاری ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد گھروں میں مہمانوں اور اہل خانہ کے لیے مختلف روایتی اور خصوصی کھانے تیار کرنے میں مصروف رہی ہے۔ کہیں باربیکیو کا اہتمام کیا گیا تو کہیں گوشت سے تیار کی جانے والی روایتی ڈشز مہمانوں کی توازوں کا حصہ بن رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر خصوصی پکوان اور دعوتیں خاندانی روایات کا اہم حصہ ہیں۔ گھروں میں کباب، ٹکے، بریانی، قورمہ اور دیگر لذیذ ڈشز تیار کی گئی ہیں، جبکہ بچے اور بڑے سب ہی عید کی خوشیوں سے بھرپور لطف اندوز ہوئے ہیں۔ شہر قائد میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد تفریحی مقامات کا رخ کر رہی ہے۔ عید کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے خاندانوں، بچوں اور نوجوانوں نے مختلف پارکس اور تفریحی مراکز میں حاضری دی ہے، جہاں خوشگوار موسم اور عید کی رونقوں نے ماحول کو مزید پرکشش بنا دیا ہے۔ خصوصاً قائد اعظم پارک میں قائم چڑیا گھر شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، جہاں بچوں نے مختلف جانور اور پرندوں کو دیکھ کر خوب لطف اٹھایا ہے۔ پارک میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز نبیل میر جس سے، جو کہ اس وقت شہریوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ نبیل، آگاہ کیجیے گا۔ ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی عید کے روز شہریوں نے ابھی رخ کیا ہے مختلف پارکوں کا۔ میں ایک وقت موجود ہوں قائد اعظم پارک پہ بنائی گئی چڑیا گھر میں، جہاں پر لوگ جو ہیں دور دراز سے آ رہے ہیں۔ یہاں پر چڑیا گھر بنایا گیا ہے اور مختلف یہاں پر پرندے موجود ہیں اور شہریوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بڑا مزہ ہوا ہے، چڑیا گھر بھی بنا ہوا ہے، جھیل بھی ہے، کشتیاں ہیں، جھولے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس اسٹیل ٹاؤن میں یہ جو قائد اعظم پارک ہے، یہاں پہ گھومنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، جہاں پہ ہم لوگ اپنے بچوں کو یہاں پہ گھمانے اور ہم اپنے آپ کو بھی یہاں پہ گھمانے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر قائد اعظم پارک میں بنائی گئی جھیل اور پارک شہریوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، پر چڑیا گھر بھی جو ہے شہریوں کے لیے توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ پر چڑیا گھر میں یہاں پر مختلف قسم کے پرندے یہاں پر موجود ہیں اور شہری دور دراز سے آ رہے ہیں اور یہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی، قربانی کے جانوروں کے لیے لذیذ پکوانوں کے بعد شہروں نے اب مختلف ہوٹلز کا رخ کر لیا ہے، جہاں قربانی کے بکرے کی ران کو خصوصی مسالہ جات لگا کر مزید مزیدار انداز میں روسٹ کیا جا رہا ہے، جہاں عید کے منفرد ذائقوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ملتان سے دلزیب آکاش۔ آج بالکل عید الاضحیٰ کا دوسرا روز بھی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے، سنت ابراہیمی ادا کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مزے مزے کے پکوان جو ہیں وہ دسترخوان کی ساتھ بن رہے ہیں۔ شہری جو ہے خاص طور پہ انہوں نے بک کر لیا ہے مختلف ران روسٹ پوائنٹس کا، جہاں پر جو ران روسٹ کروائی جا رہی ہے۔ ہمارے شہری موجود ان سے جانیں گے۔ قربانی کے دن بکرا بنایا تھا، اب آئے ہیں یہاں پہ ران لے کے، اور فیملی کی فرمائش تھی کہ ران کھائیں گے۔ 800 روپے کلو چل رہا ہے۔ لاسانی جرگہ 55 سال سے یہ ران روسٹ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ قسم کا مسالہ بناتے ہیں اور پہلے اسٹیم کرتے ہیں، پھر بروسٹ کر کے پھر اسٹیم بھی کرتے ہیں، تو اسٹیم والے کو اسٹیم بنا کے دیتے ہیں۔ زبردست گاہک خوشی سے بار بار کھانا لے کے آ رہے ہیں۔ ٹائم 3 گھنٹے لگتے ہیں جی ایک ران کو۔ اس وقت بات کی جائے تو بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ ران روسٹ کروانے کے لیے مختلف ران پوائنٹس میں موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ران روسٹ کروا رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ جو ہے مزے مزے کے پکوان جو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بھی جو ہے شہری بھرپور طریقے سے مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ملک میں سورج قہر ڈھانے لگا، گرمی کی شدت میں ریکارڈ اضافہ۔ سب سے زیادہ گرمی دادو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اس سے قبل سب سے زیادہ درجہ حرارت آج ہی کے دن 2017 کو تربت میں 53.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ چاکوباد، لاڑکانہ 51، سکھر، روڑی، پیڈ ایدن اور مہنجو-داڑو میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گرمی کے باعث سڑکیں سنسان ہیں، شہری پریشان ہیں۔ ہیٹ ویو کے باعث لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا۔ سیاحوں کے لیے خوشخبری، ناران، کاغان اور گلگت بلتستان کو ملانے والی بابوسر روڈ ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ بابوسر روڈ سے برف ہٹانے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ چھوٹی گاڑیوں کو سفر کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بابوسر روڈ پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مسافر شام 4 بجے سے پہلے بابوسر روڈ پر اپنا سفر مکمل کریں۔ شام 4 بجے کے بعد سفر پر پابندی ہوگی۔ سطح سمندر سے 13,700 فیٹ بلند بابوسر ٹاپ گزشتہ سال برفباری کے باعث بند ہوا تھا۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کا چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ نے چڑی کوٹ سیکٹر میں دفاع وطن پر معمور پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید منائی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کے بلند حوصلے ملک کی سلامتی کے لیے خدمات کو قومی فخر قرار دے دیا ہے۔
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस मौका पर कहा कि मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस साबित करता है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान के जज्बा इसार, जुर्रत और हुब्बुल वतनी पर फ़ख्र है। कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद हर सूरत और हर कीमत पर जारी रहेगी। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी एक रोज़ा दौरे पर पीर को पहुँच गए हैं। वज़ीर आला ने अफसी के शहदा अख्तर अली और ईदू खान के अहल खाना से मुलाकात की और वहाँ पर फातह खानी की है। शहदा की कुर्बानियाँ कौम के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। सरफराज बुगटी का शहदा के भाइयों के लिए एक सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं होगा, हुकूमत शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय चलते हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जगह कोई आलाइश पड़ी हुई नज़र नहीं आई, लेकिन हाँ जहाँ पर आलाइश पड़ी हुई नज़र आई अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, उसको उठाया गया, उस जगह को क्लियर किया। मैं शहरियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम में हमारा ताफ़ुन वगैरह की जो भी शिकायत होती है उसको हम काउंटर कर सकें, उसको हम टैकल कर सकें। ये नंबर जो है इसको आप, मेरा जो सॉलिड वेस्ट का दफ्तर है, अगर आप चाहते हैं कभी वहाँ आपको ले जाएंगे। तमाम चीज़ों को डिजिटली मॉनिटर किया जा रहा है, वो आपको दिखा सकते हैं हम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना 1000 टन हमने आलाइशों को उठाया है, तो ये प्रॉपर वो है जो इसको वे करने के बाद ज़मीन बोस किया गया है और इसी के बेसिस के ऊपर इवेंचुअली फिर कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी शहर भर से आलाइशें ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से गली मोहल्लों से आलाइशें उठाकर पिकअप पॉइंट पर इकट्ठा किया जा रहा है। आलाइशों को पिकअप पॉइंट से बड़ी गाड़ियों के जरिए डंपिंग पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ सैयद अली हसन से। और जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और कराची भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के सिलसिले के साथ साथ शहर भर से आलाइशों को ठिकाने लगाने का सिलसिला भी जारी है। शहरी ज़िलाई जो हुकूमत है वो अपनी ज़िम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभा रही हैं और शहर भर की जो गली मोहल्ले और दीगर जो सड़कें हैं वहाँ से आलाइशों को उठाकर कलेक्शन पॉइंट पर लाया जा रहा है। उसके बाद जो है वहाँ से इसे कलेक्ट करके डंपिंग पॉइंट पर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इंतज़ामिया मौजूद है, इनसे भी बात करते जानते हैं कि वो किस तरह ये काम कर रही हैं। हमारे पास जो है ना ये आपकी जो डंपिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ स्पॉट्स पे बनी हुई हैं, जहाँ पे हमारी छोटी जो गाड़ियाँ जा रही हैं जिसमें आपके सुजुकी हैं और हमारी लोडर रिक्शा और हमारे अपनी जो कंपनी की व्हीकल्स हैं, मुख्तलिफ गलियों से जितनी भी आलाइशें हैं वो उठा के इस जगह पे डंपिंग पॉइंट पे लाते हैं और वहाँ से फिर हमारी जो बड़े डंपर्स हैं आपके 12 व्हीलर वो वहाँ से जो ना कलेक्ट करके एंड पॉइंट तक जाते हैं जो हमारी हब चौकी की तरफ और मेवाशाह की तरफ है। इंतज़ामिया के यही कहना है कि जो शहर भर की मुख्तलिफ गली मोहल्ले हैं वहाँ से छोटी जो गाड़ियाँ हैं उनके ज़रिए आलाइशों को कलेक्शन पॉइंट पे लाया जा रहा है और यहाँ से बड़ी गाड़ियों के ज़रिए जो हब चौकी और दीगर मेवाशाह और शेरशाह की तरफ जो बनाए गए हैं डंपिंग पॉइंट, वहाँ पर आलाइशों को ले जाकर ठिकाने लगाया जा रहा है। ईद के दूसरे रोज़ बड़ी ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए शहरी बच्चों के हमरा चिड़ियाघर पहुँच गए हैं। लाहौर ज़ू में बच्चों का मुख्तलिफ जानवरों को देखने का खूब जोश खरोश देखने में आया है, जबकि वालिदैन का कहना है कि ईद की खुशियाँ यादगार बनाने के लिए बच्चों को तफरीह फराहम करना ज़रूरी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गर्मी के मौसम में ज़ू में मज़ीद सहूलियात भी फराहम की जाएँ। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर कैसर इफ्तिखार से, जो कि इस वक्त लाहौर ज़ू में मौजूद हैं। कैसर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बकरा ईद का दूसरा रोज़ है और शहरी जहाँ पर जो सुन्नत इब्राहिमी है उसके फ़राइज़ सर अंजाम देती हुई दिखाई दी शहर भर में। वहीं पर जो फैमिलीज़ हैं वो बच्चों को लेकर ज़ू पहुँच चुके हैं, चिड़ियाघर पहुँच चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे और फैमिलीज़ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का हमें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर हैं,
बंदर, ऐसी चीज़ें कि जिन्हें देख के बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पे जानवर भी हैं और जो है वो तफरी भी हो रही है। एंजॉय करना चाहते हैं बच्चे, और ईद का दूसरा रोज़ है। हम फैसलाबाद से आए हैं और हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं, सारी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होकर आए हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो शहरी है इस वक्त जू में मौजूद, उनका यही कहना है कि जहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी है उसके फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद बच्चों की खुशी के लिए ये फैसलाबाद से आए हैं बाकायदा जो है पूरी फैमिली के साथ, और शहर लाहौर में यहाँ पर जू में ईद के दूसरे रोज़ जो है वो यहाँ पर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मौलाना फजल रहमान को फ़ोन हाफिज़ नईमुर रहमान ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। दोनों रहनुमाओं की मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हाफिज़ नईमुर रहमान और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अब्राहम अकॉर्ड तस्लीम न करने पर इतफाक हुआ है। हुकूमत फ़लस्तीन के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी और अब्राहम अकॉर्ड को मुस्तरद करे हाफिज़ नईम और मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। हाफिज़ नईम और मौलाना फजल रहमान का गुफ्तगू के दौरान कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और साबिक़ स्पीकर असद कैसर को भी टेलीफोन हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से दोनों रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी गई है। हाफिज़ नईमुर रहमान और PTI की क़यादत के दरमियान मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेशावर में 2 लड़कों के मुख्तलिफ जगहों पर डूबने के वाक़यात। एक वाक़े में पेशावर डैम में डूबने वाला 22 साला नौजवान जाम बहक हो गया है। जर चढ़ी मंडे डैम से नौजवान की लाश बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू सराय के मुताबिक गोताखोर टीमें डैम में सर्च ऑपरेशन उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। नाश वर्षा के हवाले कर दी गई। दूसरे वाक़े में पेशावर का 10 साला बच्चा करंट पार्क नौशहरा के करीब दरिया में डूबकर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू 122 के ने गोताखोरों के जरिए बच्चे की लाश निकाल ली। बच्चे की शनाख्त आतिफ उमर के नाम से हुई। कराची में 1 घंटे के दौरान 2 ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक। बल्दिया टाउन नंबर 3 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर, 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 23 साला इब्राहिम वल्द नसीम और 20 साला सईद वल्द रिजवान शामिल हैं, जबकि पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, 2 अफराद जान से गए। हादसे में 30 साला जहीर खान और 40 साला अब्दुल क़य्यूम वल्द कादिर बख्श भी मौका पर दम तोड़ गया। रुझान के इलाके बद्दी मजारी में 2 कबाइल के दरमियान दरीना अदावत पर खूनी लड़ाई। रुझान में सोरेजा और हरवानी बिरादरी आमने सामने। दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। डेड बॉडीज़ और जख्मियों को THQ अस्पताल रुझान मुंतकिल कर दिया गया। रुझान थाना उमरकोट पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। शेखपुरा के इलाके फिरोजवाला में 20 रोज़ कबल बावले कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाली 8 साला ऐशल बतूल म्यू अस्पताल में दम तोड़ गई। मुतासरा बच्ची समेत 7 बच्चों को स्कूल जाते हुए कुत्ते ने काटा था। वरसानी मामिया कॉलोनी इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला पर गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई न की गई। शहरों ने मुतालबा किया है कि बाकी मुतासरा बच्चों के फौरी मेडिकल टेस्ट और इलाज को यकीनी बनाया जाए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।